Hello friends, how are you? In our last class we started to discuss about importances importance of biodiversity, and we discussed the first 2 points of the importance of biodiversity. The first point was their economical importance, in which we discussed that the dwarf varieties of the wheat and paddy was developed from the wild variety of that species in the and we also discussed that by using the biodiversity there are various modifications, or there are various biodiversity options we have about the different genes or the different varieties of a species to which are capable to protect from the various diseases and the pathogens and insects also. Okay, and after that, in the topic of economic value, we also discussed about biodiesel tree. Okay, and then we also discussed the second topic, which was medicinal importance of biodiversity, in which we discussed that various plants which are present in nature are used as medicines from ancient time. Okay, and we discuss some of the plants, their name, and the particular disease in which they use. Okay, and that topic is very important for our exam. Okay, so I'm again requesting to prepare the names of those plants as per your for your upcoming exams. Okay, now after that we discuss about the environmental value of biodiversity, and we discussed the first topic, which was protection of food chain, and in which we consider the definition of the food chain, and we also discussed that how the biodiversity play an important role in the conservation or protection of a food chain. That if there is a rich biodiversity, then the living organisms have many options for their food, and in that condition, if any one of the species of the food chain is eliminated, then the alternatives which provided by the biodiversity can save the entire food chain. Okay, now I'm starting the second topic of our environmental value, that is regulation of the nutrient cycle. The regulation of nutrient cycle. Okay, in the class 9th and class 8th 7th also, you studied about the nutrient cycle. The question first comes in our mind: what is nutrient cycle? The flow of nutrient from one level to another of an component of ecosystems इज न्यूट्रिएंट साइकिल. या सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो न्यूट्रिएंट्स का नेचर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलना और लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस नेचर में चले जाना. इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट हो गया भाई, सिंपल बोले तो बायोटिक और एबायोटिक, उनके बीच में जो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है उसके लिए यहाँ पे वर्ड काम में लेते हैं अपन न्यूट्रिएंट साइकिल्स. ओके, बायोडाइवर्सिटी also play an important role in the maintaining nutrient cycle in nature. बायोडाइवर्सिटी जो है वो नेचर के अंदर जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं उनको मेंटेन करने में या उनकी मेंटेनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, इट इज हेल्पफुल इन द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है, जो एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो फ्लो है न्यूट्रिएंट्स का, उसको बनाए रखने में, उसको कंटिन्यूस रखने के अंदर ये हेल्प करती है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? जैसे सिंपल सी बात करें, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन दे यूज फॉर देयर बॉडी फंक्शनिंग, and when an animal eat the plants, these nutrients now available for the animals. And after that, when the carnivorous
eat the herbivorous animal, then they transfer to the carnivorous, and so on. Finally, when any one of the organism, either plant or either animal, is die, then the microorganisms which are present in nature decompose the body parts of that organism and convert the nutrient again into simpler form and mix into the soil. After that, again they used by plants and so on. This process will run in our nature. सिंपल से वर्ड में बोलिए तो प्लांट जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, फिर उस न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं वो अपनी बॉडी फंक्शनिंग में, बॉडी मेकिंग, बॉडी फंक्शनिंग के अंदर यूज करते हैं. जब उस प्लांट को कोई हार्बिवोरस एनिमल ईट करता है तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं एनिमल्स में. अब हार्बिवोरस को ईट करता है कार्निवोरस, तो नाउ दे ट्रांसफर टू द कार्निवोरस. अब वो कार्निवोरस को ट्रांसफर हो गए. जब इनमें से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, तो उसकी बॉडी जो नेचर में मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको डिकम्पोज करती हैं, और इस डिकम्पोजिशन में जो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, वापस से उन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं. और सॉइल में मिक्स होने पर नाउ अगेन दे आर अवेलेबल फॉर द प्लांट्स. अब वो वापस से प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो गए. तो इस तरीके से ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो कंटिन्यूस होता है. अगर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, केवल अर्थ पर प्लांट ही प्लांट होते, तो उस कंडीशन में न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे कंप्लीट होता? उसकी कंप्लीशन के लिए एनिमल्स की भी रिक्वायरमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी रिक्वायरमेंट है. जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच होगा कोई भी पर्टिकुलर एरिया, वहां पर न्यूट्रिएंट का फ्लो उतना ही फास्ट होता है. Got it? Now, biodiversity also, the plant intake nutrients from the soil and make available to other organisms. प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से इंटेक करते हैं और बाद में जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि एनिमल्स, उनको अवेलेबल कराते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सॉइल डिकम्पोज द डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड मिक्स द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. सॉइल में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट और एनिमल के डेड पार्ट्स को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं. क्या कर देंगे? वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं. तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर रन आउट होता है. गॉट इट? नाउ एनवायरमेंटल वैल्यूज के अंदर ही थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स. You know that there are various type of pollutants which are result of human activities. बहुत सारे टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं नेचर में जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट है. देखो, नेचुरल कोई भी मटेरियल कभी पॉल्यूटेंट नहीं बनता. हाँ, अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो जरूर एक पॉल्यूटेंट कैटेगरी के अंदर वो चला जाता है. अदरवाइज नेचर के अंदर बैलेंसिंग है. लेकिन जैसे ही ह्यूमन का इन्फ्लुएंस आता है, ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, तो हमने जो नेचुरल सब्सटेंसेज हैं उनको मॉडिफाई करके डिफरेंट काइंड ऑफ अदर केमिकल्स अपने प्रोड्यूस किए जो कि आज एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट की कैटेगरी के अंदर है. ओके, तो बहुत सारे टाइप के केमिकल्स जो हैं वो यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर क्रिएट होते हैं, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज से हो. उनका जो डिस्पोजल है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एनवायरमेंटल जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं अगर उनका प्रॉपर डिस्पोजल ना हो तो डेफिनेटली दे विल स्पॉइल और डिस्ट्रॉय द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो वो नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी और क्वांटिटी को स्पॉइल आउट कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसलिए नेचुरल प्लस उनके साथ उन पॉल्यूटेंट्स का हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में मिक्स होने से जो नेचुरल रिसोर्सेज जो एक हमारे लिए एक तरीके से बून है, वरदान है नेचर का, वो जो हैं वो अब हमारे लिए पूरी तरह से एक तरीके से अपन पॉइजन के कैटेगरी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं. वो अब हमारे लिए जहर बन गया. सिंपल सी बात करें, वाटर हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर उसमें टॉक्सिक केमिकल्स मिक्स हो जाएं तो उस कंडीशन में वो अब हमारे लिए
रिक्वायर्ड की जगह हमारे लिए वो पॉइजनस हो चुका। तो ये जो एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं पॉल्यूटेंट्स का, इसका भी सॉल्यूशन नेचर के अंदर है बाय यूजिंग द बायोडाइवर्सिटी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनका प्रॉपर डिस्पोजल करने में हेल्प कर सकते हैं। गॉट इट? बायोडाइवर्सिटी also play an important role in the disposal of environmental pollution। बायोडाइवर्सिटी जो है वो environmental pollutants की डिस्पोजल के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेरियस ऑर्गेनिजम्स, यहां पर एन वर्ड हो रहेगा, वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैव कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनली यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आएगी, हैव कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। उनमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की, उनकी डिग्रेडेशन यानी कि उनको डिस्ट्रॉय आउट करने की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पर होती है, वो ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर अपन कंसिडर करें तो दैट इज कैंथरस, दैट इज कैंथरस रोसस plant has ability to decompose the explosive chemical like trinitrotoluene TNT। जो कैथरेंथस रोसस नाम का जो प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये जो एक्सप्लोसिव केमिकल्स, जो टीएनटी जिसका यूज बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इसको डिकम्पोज करने की यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द सुडोमोनास प्यूटिडा, आर्थ्रोबैक्टर, आर्थ्रोबैक्टर विस्कोसस एंड सिट्रोबैक्टर and Citrobacter species have the ability to remove heavy metals from industrial waste। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से? सुडोमोनास प्यूटिडा, आर्थ्रोबैक्टर विस्कोसस एंड सिट्रोबैक्टर स्पीसीज। ये जो स्पीसीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इनके अंदर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उससे हैवी टॉक्सिक मेटल्स को रिमूव करने का इनके अंदर कैपेसिटी होती है। ओके, सिमिलरली फंजाई स्पीसीज लाइक द राइजोपस ओराइजीज कैन रिमूव यूरेनियम। फंगस की एक स्पीसीज दैट इज राइजोपस ओराइजीज, इसके अंदर यूरेनियम जैसे जो रेडियो एक्टिव टॉक्सिक जो हैवी मेटल है, एलिमेंट है, उसको रिमूव करने की कैपेसिटी होती है। इसी तरह से पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नाम की जो एक और फंगस स्पीसीज है, उसके अंदर रेडियम नाम का जो टॉक्सिक एलिमेंट है, इसको रिमूव करने की कैपेसिटी होती है। गॉट इट? अब ये जो नेम्स है ये अपने को याद रखने। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे बनता है, डायरेक्ट आपसे यहां पर क्वेश्चन कैन आस्क बाय द पेपर सेटर। सो मेक द नेम्स, मेमोराइज द नेम्स विथ द एबिलिटी of the removal of the which type of environmental pollutant। okay, now फोर्थ इज सोशल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट की सोशल यानी कि हमारी सोसाइटी में सामाजिक तौर पर, कल्चरल हमारे जो रहन सहन है, कल्चर है उसमें, एंड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक यानी कि धर्म वगैरह जो है उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं। द ह्यूमन कल्चर एंड एनवायरमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। ह्यूमन कल्चर और जो एनवायरमेंट है वो क्लोजली रिलेटेड है। आज की मॉडर्न लाइफ के पहले अगर अपन बात करें या सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलें, ह्यूमन कल्चर एंड एनवायरमेंट आर डेवलप्ड टुगेदर। हमारा कल्चर एनवायरमेंट के साथ साथ ही डेवलप हुआ है। जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आए हैं
उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो हमारे कल्चर है उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस अपन ने देखे हैं। सिंपल सी बात करें, हमारा जो सिविलाइजेशंस हैं वो सारे के सारे जो रिवर्स हैं उनके जो किनारे जो बैंक है, किनारे जो हैं उन पर हुआ है। जैसे ही एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ, रिवर का वाटर का फ्लो चेंज हो गया डायरेक्शन, हम वहां से ट्रांसफर हुए। गॉट इट? तो हमारा डेवलपमेंट, हमारे कल्चर का डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं। बिफोर टूडेज मॉडर्न लाइफ देयर वाज ए हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। आज की मॉडर्न जो कंज्यूमरिस्ट जो हमारी जो नेचर हो चुकी है उससे पहले, यानी कि एंशिएंट टाइम में ह्यूमंस और नेचर के बीच में एक हार्मोनी थी, एक तालमेल था, एक सामंजस्य था। ठीक? हमारे जितने भी इवेंट्स हैं, आज भी हम बहुत सारे जो इवेंट्स जो अपन कंसिडर करते हैं, चाहे वो हमारे कल्चर का पार्ट है या हमारे स्पिरिचुअल पार्ट है, उसमें हम किसी न किसी एनवायरमेंटल आइडल का यूज कर रहे हैं। एनवायरमेंटल आइडल का यूज अपन करते हैं। एनवायरमेंट के साथ हमारा बहुत क्लोजली कनेक्शन रहा है। इवन सम ऑफ द ट्राइबल्स सोसाइटीज आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर देयर बेसिक नीड्स। आज भी बहुत सारी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, जो आदिवासी जो सोसाइटीज हैं, वो आज भी नेचर पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपनी बेसिक नीड के लिए। जितनी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फायरवुड की हो, चाहे फूड के लिए एनिमल हंटिंग हो, चाहे फूड के लिए प्लांट्स वेजिटेबल्स की कंसिडरेशन हो, या और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो फॉरेस्ट नेचर उसी पर वो डिपेंड करते हैं। वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक द पीपल, बेनियान, मैंगो, आंवला, various plants like the plant and animals like the people, banyan, mango, amla, banana, sorry, that is banana. Sometime my handwriting become issue for me also, sorry for that. Banana, cow, peacock, rat, elephant, etc. still have very special place in our society. आज भी बहुत सारे जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, जैसे कि पीपल हैं या बेनियान यानी कि बरगद, मैंगो, आंवला, बनाना, केला, काऊ, पिकॉक, रैट, एलिफेंट्स, ये आज भी हमारे कल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। गॉट इट? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी हम इनको आइडल के तौर पर अपन इनका यूज करते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें, अपन जैसे पीपल की बात कर लें तो इसको अपन 33 टाइप्स ऑफ जो गॉड अपन कंसिडर करते हैं, उन सभी का इसके ऊपर अपन बोलते हैं कि वो यहाँ पर रहते हैं। या अपन बेनियान की बात कर लें या किसी की भी आप काऊ अपन मदर के तौर पर बोलते हैं। पिकॉक तो वो जो भगवान कार्तिकेय हैं उनका एक तरीके से व्हीकल के तौर पर बोल सकते हैं अपन, व्हीकल तो नहीं बोलूँगा लेकिन एज ए उनका सिंबल के तौर पर रैट, एलिफेंट। तो आज भी हम इन जो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितने भी हैं उन सभी को हमने कोई ना कोई इंपॉर्टेंस अपन ने दी है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट में हमारी सोसाइटी में साइंस का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो हमें हमारे जो एंशंट जो सैग थी, संत जो थे, वही उस टाइम पर साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने धीरे धीरे इन इम्पोर्टेंसेस को समझा और उन्होंने उस इम्पोर्टेंस को समझाने की ट्राई की, लेकिन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो फिर एक स्पिरिचुअल वे के अंदर उसको डाइवर्ट कर दिया गया। राइट? जैसे काऊ को अपन कंसिडर करें, काऊ का जो मिल्क है वो किसी भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए एज ए मदर मिल्क के जितनी इंपॉर्टेंस वो रखता है। मदर मिल्क के तो कंपेटेबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर मदर अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो उसमें बाद में उसको काऊ मिल्क दिया जाता है। काऊ मिल्क जो है उसमें फैट कम होती है, न्यूट्रिएंट्स कंपैरेटिवली टू द बफेलो मिल्क ज़्यादा हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा माना गया है ड्रिंकिंग पर्पज से।
प्लस काऊ जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा काम कूल एनिमल है जिसको अपन आराम से कैटल बना सकते हैं। प्लस उसका जो अपन बोलते हैं गोबर, जो उसका जो काऊ डंक जो है उसका यूज़ एग्रीकल्चर में किया जाता है। तो वो पूरी तरीके से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल एक एनिमल के तौर पर था। तो उसकी उसी चीज़ को शो करने के लिए, उसके लिए रेस्पेक्ट करने के लिए काऊ को अपन ने क्या दे दिया, मदर का प्लेस अपन ने दिया। तो काऊ की इंपॉर्टेंस को लोगों को समझाने की बजाय वहां पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे के अंदर उसको यहां पर कंसिडर किया गया ताकि लोग उस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से फॉलो अप कर सकें। गॉट इट? तो ये कुछ एनिमल्स प्लांट्स हैं जिसको अपन हमारे सोशल कल्चरल इंपॉर्टेंस अपन ने दी है। वी वर्शिप दीज ऑर्गेनिजम्स ऑन सम ऑफ आवर फेस्टिवल्स। हम हमारे कुछ फेस्टिवल्स में इन एनिमल्स की या इन ऑर्गेन जो प्लांट वगैरह हैं इन सब के अपन वर्शिप या पूजा वगैरह अपन करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? जैसे अपने आंवलाष्टमी आती है, या जो लोग बृहस्पतिवार गुरुवार का जो व्रत वगैरह फास्ट वगैरह रखते हैं, वो जो बनाना ट्री है, बनाना जो प्लांट है उसको वाटरिंग करना, उसकी पूजा वगैरह करना करते हैं। तो ये कुछ हमने इन एनिमल्स को अपन ने या प्लांट्स वगैरह को अपन ने वर्कशिप करके इनकी इंपॉर्टेंसेस को अपन ने शो किया है। ओके ना, अब ये कुछ दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के कंसिडरेशन में। Considering the economical, environmental, and social importances of biodiversity, the year 2010 was celebrated as International Biodiversity Year. बायोडाइवर्सिटी की इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और जो सोशल इंपॉर्टेंसेस हैं उनको देखते हुए जो 2010 ईयर जो था, 2010 उसे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। गॉट इट? क्या बनाया गया था इसको? ताकि जो पीपल हैं वो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंसेस को अंडरस्टैंड कर सके और बायोडाइवर्सिटी की मेंटेन करने में अपनी एक सक्सेसफुल, या अपन बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर सके। सेकंड, एक और पॉइंट आता है, 22 मई हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। जो 22 मई जो है उसे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के तौर पर अपन सेलिब्रेट करते हैं। ओके नाउ सॉरी, थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर जो थ्रेड्स संकट हैं वो क्या है, क्यों वो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती जा रही है? ओके one word is wrong is here, that is extinction, not extinctional, sorry for that. Extinction and development of animals and plant species is in nature is a natural phenomena. नेचर के अंदर प्लांट और एनिमल स्पीसीज का प्लांट और एनिमल स्पीसीज का एक्सटिंक्शन, खत्म होना, और न्यू स्पीसीज का डेवलप होना एक नेचुरल फिनोमिना है, यानी कि नेचर के अंदर वो चलता रहता है। जनरली ए मैमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन 400 ईयर्स एंड ए बर्ड स्पीसीज इन 200 ईयर्स। नॉर्मली अपन बात करें तो एक मैमल स्पीसीज जो है वो 400 ईयर्स में और एक बर्ड स्पीसीज जो है वो 200 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो जाती है नेचुरल वे में। बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज and over exploitation of the natural resources, the rate of elimination or extinction has increased 1000 to 10,000 times. लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है उसके कारण से जो एलिमिनेशन जो है स्पीसीज का, उसकी रेट 1000 से 10,000 टाइम फास्टर हो चुकी है। यानी कि जो स्पीसीज अगर अपन कंसिडर करें 1000 ईयर में एलिमिनेट होती तो वो मच फास्टर देन, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से नेचर से एलिमिनेट हो रही है। गॉट इट? इट रिजल्ट शार्प डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी के साथ कम हुई है। एट प्रेजेंट about 700 species has become extinct since the year 1600 AD.
अगर अपन नॉलेज जो हमारे पास जो रिटर्न नॉलेज है उसको कंसिडर अपन करें तो 1600 एडीसी 1600 जो ईयर था उससे अगर अपन आज के टाइम का कंपेयर करें तो अबाउट अप्रोक्सीमेटली 700 स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ से यहाँ तक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का केवल और केवल जो 100 ईयर इन्वॉल्व हुआ है। 19th सेंचुरी का एंडिंग जो है वो अपन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मानते हैं। अब मॉडर्न टाइम पर क्या इफेक्ट है? टुडे अबाउट 400 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स and 60,000 species of plants are on the verge of extinction. आज के टाइम पर एनिमल्स की 400 स्पीसीज 4000 स्पीसीज और प्लांट्स की 60,000 स्पीसीज जो हैं वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर हैं, यानी कि लुप्त खत्म होने की कगार पर है, कॉर्नर पर है। ओके, अबाउट 1/8 बर्ड, 1/4 मैमल, 1/4 conifer trees, 1/3 amphibian, 6/8 sea turtle species are facing the risk of extinction. यानी कि हर 8 बर्ड स्पीसीज में से 1, 4 स्पीसीज में से 1 ऑफ मैमल्स, 4 स्पीसीज ऑफ कॉनिफर ट्रीज में से 1, हर 1/3 में से 1 एम्फीबियंस, 8 में से 6 सी टर्टल स्पीसीज जो हैं वो आज रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि लुप्त होने का जो एक खतरा है उसको फेस कर रही हैं। ओके, so that is the condition of destruction of biodiversity at present time. Now the question come in our mind, what are the reasons? इसके reasons क्या हैं? So now let us start it. Following are the some of the reasons of biodiversity destruction. जो biodiversity का जो destruction है उस biodiversity destruction की कुछ जो मेन reasons हैं। सबसे पहला है habitat loss या habitat destruction। habitat का मतलब हो गया आवास। तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है जहां पर वो रहता है अगर वो डिस्ट्रॉय होगा तो डेफिनेटली उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आएगी या उसकी पॉपुलेशन जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। गॉट इट? अंडरस्टैंड? फॉरेस्ट आर हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है। वेरियस ऑर्गेनिजम्स live in forest and increase their population. बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट ह्यूमंस को और कुछ कैटल्स को छोड़ दीजिए, जो बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी फॉरेस्ट में रहते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। बट ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड वेरियस डिमांड्स लाइक द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड टाउनशिप्स, these natural habitats are destroying by humans. लेकिन जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए लैंड, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर जो आउटपुट है जो हमारा फूड है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर लैंड बढ़ेगी। उसके अलावा जो हमारे रहने के लिए जो टाउनशिप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है तो वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगेन रिपीटिंग, बट ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन due to the growing population and various demands like the land for agriculture and townships, these natural habitats are destroying by humans के द्वारा ये natural habitat यानी कि forest जो हैं वो destroy किए जा रहे हैं। अब इसका impact क्या आ रहा है? Today, पहले अपन forest का डाटा की अपन कंसिडर करें थोड़ा सा। Today 1.7 हेक्टेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बीइंग कट पर ईयर। आज के टाइम पर 1.7 हेक्टेयर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, 1.7 हेक्टेयर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो अगर अपन कंसिडर करें हमारे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट मोर देन 50% स्पीसीज जिन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनका 1.7 करोड़ हेक्टेयर 1.7 करोड़ हेक्टेयर फॉरेस्ट पर ईयर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं।
1.7 crore hectare forest, tropical forest, are destroying every year. Yeah, are being cut per year. It is going on the rate. If it is going on this rate, then 5 to 10% of plant and animal species of these forests will become extinct in next 30 years. अगर ये इसी स्पीड के साथ चलता रहा, इसी रेट के साथ चलता रहा, तो नेक्स्ट 30 ईयर्स में जो इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल्स की जो 5 to 10% जो स्पीसीज हैं वो एलिमिनेट होंगी. Got it? Similarly, 1 crore hectare temperate rainy forest are destroying per year. इसी तरह से 1 crore hectare जो temperate rainy forest है वो per year destroy हो रहे हैं. All of these destruction, चाहे वो tropical forest की हो चाहे temperate rainy forest की हो, the destruction is due to human activities and badly affecting बायोडाइवर्सिटी. ये सभी डिस्ट्रक्शन ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण है और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को बैडली अफेक्ट कर रहे हैं. गॉट इट? सो दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट रीजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज हैबिटेट लॉस. The second, third and fourth points we will discuss in next class. Okay, hope you like it. Thank you.